Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. देखिए, हम अलग अलग मोड में होते हैं। कोई भी टीचर भाई साहब अपने मोड में रहता है, ट्र पढ़ा दिया तो नहीं समझ में आया, हो सकता है भाई साहब, थिंग्स माइट स्किप, सो फील फ्री टू एक्सप्रेस। लेकिन कभी कभी टाइम नहीं रहता है हमारे पास, ठीक है, तो मतलब आज चलो है, मैं इसको कवर कर लेता हूँ, ये ऐसा रोज़ नहीं चलेगा, आप उसी टाइम पे बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, इट्स माई सजेशन। आप कभी भी बोल सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया या ये पर्टिकुलर चैप्टर नहीं समझ में आया। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन टू यू, आई हैव नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इट। लेकिन अभी सिलेबस भी टाइम पे करवाना है तो एक बर्डन हमारे ऊपर रहता है, और मतलब अगर आप देखोगे 90 चैप्टर्स कोई खाने का काम नहीं है, ठीक है, 2 सालों में आपके 90 चैप्टर्स हैं जो हमको कवर कराने रहेंगे, और मतलब किसी भी फैकल्टी के लिए एक बर्डन है, तो होता ही है, हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। आपके स्कूल, आप बताइए आप किस स्कूल में कितने ही लेंथ से वो कवर करा पाएंगे, कितने ही डेप्थ से कवर करा पाएंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, शायद 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ये सबका ही है। और मैं किसी स्कूल वाले को इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनको भी वैसा प्रेशर रहता है, उनको भाई साहब 4 टर्म एग्जामिनेशन का, उनको भाई साहब अगर मतलब आज पेपर रिलीज़ करना, तुम्हारा कोर्स नहीं खत्म हुआ, भाई साहब उनकी क्लास लग जाएगी अलग से, ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज देयर। सो हो सकता है कि हम भी कभी कभी मोड में भर हो जाए, तो हो सकता है बाउंसर हो जाए, इट हैपन्स, and if that happens feel free to message me or even call me or even text me, और even बेहतर होगा अगर आप क्लास में ही पॉइंट आउट करें, क्लास में पॉइंट आउट करें, मतलब यूसुफ की तरह ना करें, ठीक है। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन उसके सवाल पूछने के तरीके मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो पे अटेंशन नहीं करता है और अचानक बयान, ये क्या हो गया, अरे तू पहले इसको सीक्वेंस से समझ। खैर ओके, तो मेरा ये मानना है कि आप, मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में चलाऊंगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है फील फ्री टू ग्रास्प इट, ठीक है। सो व्हाट इज buoyancy people? Whenever a body is basically immersed in a liquid, it experiences an upthrust, and this upthrust is basically what? This upthrust is nothing but an upward force experienced by the body, ठीक है। ये कहाँ होगा? जब आप किसी बॉडी को फ्लूइड में डाल रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड में डाल रहे हैं। फ्लूइड क्या होता है? गैसेज और लिक्विड्स दोनों भी होती हैं, है ना भाई साहब, ठीक है। अगर आप हवा में गिर रहे हैं तो क्या बुयांसी होगी? नहीं होगी। आप हवा में गिर रहे हैं, बुयांसी होगी कि नहीं होगी? विल देयर बी एन अपवर्ड थ्रस्ट ऑन यू? नहीं होगी। अच्छा, अगर आप पैराशूट लेकर गिर रहे हैं तो होगा? अरे क्यों नहीं होगा? अब भाई तुम अगर ऐसे ही गिरोगे ना तो शायद जिंदा ना बचो, लेकिन पैराशूट से उतरोगे तो लैंड करते हो। कहां से पैराशूट ने क्या कमाल कर दिया?
तो इसका मतलब बियॉन्सी एग्जिस्ट कर रहा है ना। हवा ऊपर है, हवा आपके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन आपके बॉडी का सरफेस एरिया उतना ज्यादा नहीं है कि उसका फायदा उठा सके। इसीलिए आपने क्या किया, एक पैराशूट लिया। पैराशूट भाई साहब इसका एरिया बहुत है और इसीलिए वो तमाम हवा इसको भाई साहब लिफ्ट कर रही है, ये हवा अभी रुक रही है। आपके बॉडी का सरफेस एरिया उतना नहीं है कि इस अपथ्रस्ट को इफेक्टिवली यूज कर पाए, लेकिन जैसे ही आपने एक पैराशूट लगाया ये भाई साहब यूज कर पा रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? सो अपथ्रस्ट ऑन यू विल एग्जिस्ट एवरीवेयर, वेदर यू आर जंपिंग ऑन वाटर और वेदर यू आर इन एयर। अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से हर एक फ्लूइड आपके ऊपर अपथ्रस्ट लगाएगा। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेड सी। सो इफ देयर इज अ डेड सी, अगर भाई साहब डेड सी एक ऐसा सी है जहां पे अगर आप तैरना ना भी जानते हो तो भी आप फ्लोट करेंगे। इट इज एज इफ आप एक रबर ट्यूब लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको तैरना ना आता हो तो आपको एक रबर ट्यूब लेना पड़ेगा, लेकिन वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पे डेंसिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी आपको अफ्लोट रखेगी। तो हर चीज का, हर सॉलिड, हर लिक्विड का और हर गैस का आपके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने बलून बुलाया वो ऊपर जा रहा है, कुछ गैस बलून्स होते हैं वो टर्र ऊपर जाते हैं भाई साहब, ठीक है। क्यों? बिकॉज दीज आर वेरी मच लाइटर देन एयर और उन पे फट से अपथ्रस्ट लग रहा है। कुछ बलून्स ऐसे होते हैं कि मतलब आपने जो फुलाया वो फुलाया रहेगा तो किससे फुलाया रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एयर से भारी होता है, लेकिन वो इतना हल्का फुल्का है कि वो अपथ्रस्ट लग रहा है और वो ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये जो गुब्बारे वाले जो बेचते हैं वो देखो सख्त से ऊपर जाता है, तो डिफरेंस क्या है? उसमें हीलियम गैस है, ठीक है, और वो भाई साहब बहुत ज्यादा लाइट है। अगर आप देखोगे, आपने पढ़ा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपने 10th में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का अगर मिक्सचर रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रहेगा, एयर ऊपर रहेगा, वो भारी रहेगा, ठीक है, वो भारी रहेगा। इसीलिए उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम कलेक्ट करते हैं, क्या? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। तो हीलियम फट से भाई साहब ऊपर जाएगा, वो मतलब आपने उसको खोल दिया तो सख्त से ऊपर चला जाएगा, वो कोई लहराते हुए ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीजें हमको देखने को मिलती हैं, विच इज बेसिकली बियॉन्सी। सो व्हाट डज बियॉन्सी स्टेट? कि अगर आपने भाई साहब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में इमर्स किया है, चाहे वो डूबे, चाहे वो सिंक करे पूरा पूरा, या चाहे वो फ्लोट करे, ठीक है, देयर विल बी अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड by the solid. There is a certain volume of liquid that is displaced by the solid, and this volume of liquid that is displaced by the solid, ठीक है, इसका अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? This will be what? This is the upthrust. तो आपके ऊपर upthrust कितना लग रहा है भाई साहब? Upthrust is equal to what people? The weight of volume of liquid displaced by the solid. लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, ठीक है, ये आपका अपथ्रस्ट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है, व्हेनेवर यू इमर्स अ सॉलिड इन अ लिक्विड और अ फ्लूइड, देयर विल बी अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। दिस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसका जितना वेट होगा उतना ही अपथ्रस्ट बॉडी पे लगेगा, ठीक है, जिसके वजह से बॉडी का वेट गिरेगा और इस गिरे हुए वेट को अपन क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट, ठीक है, एपरेंट वेट। दैट्स नॉट द रियल वेट, दैट्स द एपरेंट वेट, ठीक है, ओके। सो एक बॉडी पे अपथ्रस्ट लगेगा तो यहां पे समझ लो भाई साहब ये आपका फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ और ये अपथ्रस्ट क्या होगा? इसके इस फ्लूइड डिस्प्लेस फ्लूइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी पासिंग, द अपथ्रस्ट विल बी नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसी डायरेक्शन में ये जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और buoyant force and the phenomena is called buoyancy, ठीक है। So when a body is immersed in a fluid, the fluid exerts pressure on all the surfaces of the body, but the fluid pressure increases with depth. The upward thrust at the bottom is more than the downward thrust. तो आपका बॉडी पे जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है ये डाउनवर्ड थ्रस्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड थ्रस्ट का जो मतलब हाइट है वो ज्यादा है, द हाइट इज मोर, ठीक है, क्लियर है? सो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और buoyant force and the phenomena is called buoyancy, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ कॉक क्या होता है भाई साहब? एक प्लांट का ही पार्ट होता है, विच इज बेसिकली वुडन पार्ट,
उसको अपन ने जैसे ऐसे डालने की कोशिश की, टप से ऊपर आ जाएगा भाई साहब। कोई प्लास्टिक का कोई चीज, प्लास्टिक का बॉल ले लो भाई साहब, उसको आप नीचे लेके जा रहे हो पानी के, जैसे छोड़कर टप से ऊपर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, सो द फोर्स ऑफ बुयांसी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो बॉडी के लिक्विड में अंदर जाने से जो आपका फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, उस फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहां से ही अपथ्रस्ट गुजरता है, ठीक है। अपथ्रस्ट एक्चुअली बॉडी पे लग रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इस डायरेक्शन से आएगा ये, ठीक है, सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? ओके, द फोर्स ऑफ बुयांसी एक्ट्स टू द सेंटर, मतलब आप समझिए इस चीज को, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। आपने कोई बॉल है एकदम बीचों बीच डाला है, तो ये बॉल टुपुक से ऊपर आएगा, जैसे आप फोर्स हटाओगे, समझ लो प्लास्टिक की बॉल है, बीचों बीच डाला है आपने, ऐसे ऊपर आएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी कि अगर आपने बॉल को इधर डाला है तो क्या होगा? एक किनारे से डाल रहे हो, क्या होगा? क्या होगा बोलो जल्दी जल्दी। देखो भाई साहब, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड तो यही होगा ना, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो आपने जैसे बॉल को ऐसे डाला, ये ऐसे निकलेगा, बॉल ऐसे ऐसे डाला आपने, टुपुक से इस साइड से निकलेगा, ये समझ में आ रही है? क्योंकि द अपथ्रस्ट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बॉल को आप इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड तो यही रहेगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहेगा। और अपथ्रस्ट क्या बोल रहा है कि भाई साहब इसका डायरेक्शन, तो आपने अगर इधर से बॉल को डाला, इतना ही डिस्प्लेस्ड फ्लूइड रहेगा, लेकिन बॉल आपका इधर, आपने छोड़ दिया इसको, तो बॉल देखोगे आप ऐसे टेढ़े इधर से उतर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां से अपथ्रस्ट पुश कर रहा है उसको। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। व्हेन द फोर्स ऑफ बुयांसी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बुयांसी। आर वी क्लियर फ्रॉम दिस वन पीपल? हम आपने देखा रहेगा भाई साहब, जब हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, कुएं से पानी निकाल रहे हैं भाई साहब, ये आपका पुली है और ये भाई साहब आपका कुआं है, ठीक है। जब तक भाई साहब ये आपका बाल्टी पानी के नीचे है, तब तक भाई साहब आपको कोई फोर्स ऑलमोस्ट नहीं लग रहा है। जैसे ही ये बाल्टी बाहर आया, किसने कुएं से पानी खींचा है? अरे जिंदगी में इतना मेहनत कर लोगे भाई साहब, खींचा है, ओके। तो अगर आप देखोगे भाई साहब, जैसे ही ये बाहर आएगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत फोर्स लगाना। आपके गांव में तो कुआं ही नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, ओके। सो द फोर्स ऑफ बुयांसी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। क्या हुआ? इस चीजों से क्या हुआ? किसने मारा किसको? ओके, of the displaced fluid which is called the center of buoyancy. Are we clear? Clear on this one people? Okay, okay, okay. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भाई साहब क्या बोल रहा है? What does आर्किमिडीज प्रिंसिपल state that when a body, जब एक बॉडी को आप क्या कर रहे हो भाई साहब, होली, पूरा पूरा और पार्शली, होली और पार्शली immersed in a fluid, when a body is wholly or partially immersed in a fluid, ठीक है, when a body is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences an upward thrust, ठीक है। इस पे भाई साहब एक लगता है क्या? upward thrust लगेगा। This would experience an upward thrust and this is equal to the, this upward thrust is equal to the weight of volume of liquid displaced by the body, weight of volume of liquid displaced by the body, ठीक है, displaced by the body, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अपथ्रस्ट एक्ट्स टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये आपको जानना है कि भाई साहब अपथ्रस्ट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, ठीक है, ओके। सो फटाफट से भाई साहब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं अपन। तो ये हो गया भाई साहब, लेट्स से एक बीकर है और let's say it is filled with a liquid, ठीक है। अच्छा, हमने जब डेरिवेशन किया है ना, तो एक रेगुलर बॉडी को लेकर किया हुआ है, ठीक है। रेगुलर बॉडी मतलब जिसके शेप एंड साइज को आप मेजर कर सकते हैं। किसी स्टोन को अगर आप यूज करेंगे या किसी इरेगुलर बॉडी को आप यूज करेंगे तो भी ये डेरिवेशन एप्लीकेबल होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे भाई साहब डेरिवेशन जो आप दिखा रहे हैं उसमें भाई साहब लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपन मेजर कर सकते हैं, उसमें आप मतलब क्या ये एप्लीकेबल होगा? इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज एंड सी वी विल सी व्हाई, ठीक है, ओके। सो अभी आपने भाई साहब यहाँ पे क्या लिया हुआ है? एक लेट्स से
you have basically taken a body like this and this is immersed in the liquid. Let's say the height of this portion, so this height is h. ठीक है भाई साहब, क्लियरम, ये हाइट हो गया h, ये हो गया एरिया a, ये हो गया एरिया a, एक रेगुलर बॉडी है। हम सिर्फ इस एरिया a का एडवांटेज लेने के लिए एक रेगुलर बॉडी को ले रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ऊपर के तरफ पे एक प्रेशर P1 और नीचे इसकी तरफ से एक प्रेशर P2, ठीक है। सो ऊपर की तरफ से भाई साहब एक प्रेशर P1 और नीचे की तरफ से भाई साहब एक लेट्स से प्रेशर P2 है, ठीक है। ओके, सो अभी अगर आपने भाई साहब यहां पे मान लिया कि लेट्स से दिस हाइट इज x, this height is x, this height is x और this height we know that it is h, ठीक है। बहुत सीरियस हो गया है बच्चा, क्या हो गया बेटा, क्या कुछ नहीं, इतने सीरियसली क्या सोच रहा है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर P1, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, फोर्स F1 अपॉन इसका एरिया, है ना। प्रेशर मुझे बताओ यहां पे कितना हो जाएगा, h रो जी के हिसाब से h यहां पे कितना है बच्चा बाड़ी, h है भाई साहब आपका x, है ना भाई साहब, h रो जी होता है भाई साहब। तो x हाइट हो गई, x डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g, दिस इज इक्वल टू F1 और ये हो गया भाई साहब a। तो F1 की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई, x a रो g। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपलम क्लियरम, ठीक है। ओके, F2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे P2, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू इसी तरह से अगर हम देखें तो P2 इंटू A होगा। P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, P2 की वैल्यू बोलो ना, बोलो भाई साहब, फोर्स, तो आपका हो गया भाई साहब P2 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, x प्लस h, ये हाइट हो गया x प्लस h इंटू रो इंटू जी, ठीक है, इंटू a, ठीक है भाई साहब, ये हो गया F2। ओके, तो आपको यहां पे दिख ही रहा है कि F2 की जो वैल्यू आई है, F2 की वैल्यू बच्चा बाड़ी क्या आई है, x प्लस h a रो g, ठीक है, x प्लस h a रो g, ये हो गया भाई साहब आपका F2 का वैल्यू, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब 1 और ये हो गया भाई साहब 2। मुझे बताइए दोनों में से कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली F2 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे आप x प्लस h कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। ओके, सो डाउनवर्ड प्रेशर, ये जो बोला गया है कि बॉडी के डाउनवर्ड रीजन में ज्यादा फोर्स लग रहा है ना कि ऊपर, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स बच्चा पार्टी, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1, दैट इज हाउ मच, x प्लस h a रो g माइनस एक्स ए रो जी, ठीक है। सो दैट लीव्स यू विथ व्हाट, एक्स ए रो जी कैंसिल, एच ए रो जी, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है आपका, रिजल्टेंट फोर्स इज एक्स ए रो जी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका भाई साहब कितना आ गया, एच ए रो जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एच ए रो जी आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से देखना, ये जो रिजल्टेंट फोर्स मतलब यही हो गया आपका अपथ्रस्ट, है कि नहीं। तो अपथ्रस्ट कितना लग रहा है भाई साहब आपका, अपथ्रस्ट की वैल्यू हो गई एच ए रो जी, ठीक है। अभी एरिया इंटू हाइट, ये क्या होता है, वॉल्यूम, है कि नहीं, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, ये जो बॉडी को आपने डुबोया है जिसके वजह से देयर वुड हैव बीन अ राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, है ना भाई साहब, एक लेवल तक भाई साहब लिक्विड राइज हुआ रहेगा और ये लेवल ऑफ लिक्विड कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतने ही ऊपर भाई साहब ये लिक्विड गया रहेगा, क्योंकि उतना स्पेस इसने कैप्चर कर लिया है, तो लिक्विड को भाई साहब उतना ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं भाई साहब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग आफ्टर इमर्शन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग आफ्टर इमर्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द
सॉलिड अपन बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग आफ्टर इमर्शन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो अपना भाई साहब यहां पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग आफ्टर इमर्शन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग आफ्टर इमर्शन कितना हो जाएगा? दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अभी इधर आते हैं, देखो यहां पे ये जो H और A है ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ही तो है, ठीक है। मतलब एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, और एरिया इंटू हाइट अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो दिस विल बी अब प्लस क्या हो जाएगा? V रो G। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग, तो आपका वेट कितना हो जाएगा? इस वॉल्यूम का वेट कितना होगा? ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हुआ इसका वेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो जाएगा आपका मास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये याद रहे, ठीक है, इनटू जी, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका। सो व्हाट इज द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइजिंग और डिस्प्लेस्ड? लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजिंग इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, मास इनटू जी होता है भाई साहब ये, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब अपथ्रस्ट और ये दोनों भी एक हो गया, ठीक है। सो अपथ्रस्ट इज, तो यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये है भाई साहब आपका अपथ्रस्ट। आर वी क्लियर? और यही है आपका क्या? दिस इज बेसिकली द डेरिवेशन फॉर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब एपरेंट वेट की, ठीक है। व्हाट इज एपरेंट वेट? ठीक है, तो आपका देखो वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा भाई साहब? वेट ऑफ द सॉलिड, आपने देखा कि भाई साहब सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? V, ठीक है। लेट्स से सॉलिड का डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। तो लेट्स से सॉलिड का डेंसिटी है सिग्मा, ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट गिव्स यू द मास ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपका होता है मास, ठीक है। इनटू G विल बी द वेट ऑफ द सॉलिड, है कि नहीं? ये वेट ऑफ द सॉलिड है जब वो एयर में है। वेट ऑफ द सॉलिड व्हेन इट इज इन एयर इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब जब अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं तो अपथ्रस्ट कितना है? अपथ्रस्ट आपने देखा कितना हुआ भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू रो, ठीक है, रो विच इज बेसिकली व्हाट? द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। तो अभी आपके सॉलिड का एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? देखो एपरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को समझो, समझ लो भाई साहब, ये आपका एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और इसमें आपने एक सॉलिड को वे किया, इसका भाई साहब जो भी आया वेट आया इसका, लेट से W इज इक्वल टू mg। अभी इसी स्प्रिंग बैलेंस को और इस सॉलिड को वैसे ही रखते हुए आपने क्या किया भाई साहब? इसको भाई साहब क्या किया? पानी में इमर्स कर दिया। विल यू गेट द सेम रीडिंग? नो यू विल नॉट, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ इज एपरेंट वेट। आपको भाई साहब एपरेंट वेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल सिर्फ एक ही फोर्स था mg which was acting downwards. Now mg definitely is there which is acting downwards, but there is an upthrust as well जिसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? mg माइनस अपथ्रस्ट, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। और यही होगा आपका एपरेंट वेट, दिस विल बी योर एपरेंट वेट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द सॉलिड, तो आपका एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा? एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड, बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई साहब? वेट ऑफ सॉलिड माइनस अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, वेट ऑफ सॉलिड माइनस अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। टेल मी पीपल, व्हाट इज वेट ऑफ सॉलिड? V रो G माइनस अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, V रो G, V सिग्मा G माइनस V रो G। तो V और G भाई साहब आपके क्या हो गए? कॉमन हो गए, यहाँ पे रो माइनस दिस, ठीक है, क्लियर है। अभी मुझे अगर सॉलिड का मास लेना है तो मैं इस रो को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, सॉरी सिग्मा को। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई साहब, सिग्मा को मैंने कॉमन निकाला तो इधर कितना बचेगा? 1, और इधर कितना हो जाएगा? बोलो, रो बाई सिग्मा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि सिग्मा सिग्मा कैंसिल होता है। अभी
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा g, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉलिड। समझ में आता है ये, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो गया मास, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट, सो दिस विल बी वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड 1 माइनस रो बाय सिग्मा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा भाई साहब, अभी जब आप रीडिंग लोगे अभी तो ये वेट मिलेगा आपको, दिस विल बी योर एपरेंट वेट, ये वेट आपको मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एपरेंट वेट भाई साहब कितना हो गया, व्हाट इज द एपरेंट वेट बच्चा पार्टी, दैट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल वेट व्हेन यू आर ट्राइंग टू वेट हियर, ठीक है, अब इनटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा, वेयर रो इज बेसिकली व्हाट, density of the liquid in which the solid is immersed, so this is the density of liquid, और भाई साहब सिग्मा का हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया ये। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ठीक है। तो अभी आप देखो भाई साहब कि वेट कम कब होगा, कम कब होगा, जब आपकी सॉलिड की भाई साहब डेंसिटी ज्यादा हो और ये वाली भाई साहब, क्योंकि देखो ये 1 है, मतलब ये वाला फैक्टर जितना कम होगा, ये वाला फैक्टर जितना कम होगा उतना भाई साहब वेट आपका क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा, एपरेंट वेट होएगा, ठीक है। सो आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द एपरेंट वेट। तो जब भी आप किसी सॉलिड को इमर्स करते हो लिक्विड में, इट विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट फ्लोट्स और वेदर इट सिंक्स, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सिद्धांत क्या है फ्लोटिंग का, सिद्धांत, ओके। तो अभी भाई साहब अगर कोई ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे नीचे सिंक कर रहा है, ठीक है, सो इफ अ बॉडी ऑन इमर्सिंग इन अ लिक्विड सिंक्स, देन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग पीपल, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द अपथ्रस्ट दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, so weight of the body definitely happens to be more than the upthrust acting on the body, and that is the reason why it will sink, ठीक है। अभी weight भाई साहब क्या है, volume of the body, density of the body into g, है ना, this is more than upthrust क्या है, volume of the body, density of the liquid and g, ठीक है, कैंसलम 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 कैंसलम। तो आप बहुत सीधे साफ लफ्जों में ये बोल सकते हैं कि if the density of the solid is more than the density of the liquid, it will sink, 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 ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी अगर समझ लो भाई साहब ये वाली सिचुएशन कब अराइज होती है कि भाई साहब ये लिक्विड है और सॉलिड जो है तो जस्ट ऐसे फ्लोट हो रही है, इट इज जस्ट फ्लोटिंग लाइक दिस, सो व्हेन विल दिस सिचुएशन अराइज, ठीक है, व्हेन द लिक्विड, जब आपका भाई साहब W और U अपथ्रस्ट जब बराबर हो जाए, मतलब क्या हो जाए भाई साहब आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड G इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड G, कैंसलम 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 कैंसलम, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द क्या कहते हैं सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ज्यादा करके ये ऐसे फ्लोट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। आइस को देखा है आपने, ऐसे फ्लोट करता है, ऑलमोस्ट इक्वल है डेंसिटी आइस और वाटर का, ठीक है, ओके। एंड इफ इट बेसिकली, तो आपका भाई साहब अगर कोई ऐसा बॉडी है जिसका ऐसे दिख रहा है आपको, मतलब उसका थोड़ा सा ही पोर्शन नीचे है, बाकी ज्यादा करके पोर्शन उसका ऊपर है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, वेट इज लेसर देन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी, टुपुंग 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 ऐसा करता रहेगा भाई साहब, ठीक है। सो वेट इज लेसर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड G इज लेस देन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड G, कैंसलम 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 कैंसलम। तो यहाँ पे आप बड़े साफ सुथरे तौर पे बोल सकते हैं कि भाई साहब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आर वी क्लियर थ्रू व्हेन द बॉडी विल सिंक एंड व्हेन द बॉडी विल फ्लोट। हाउएवर ऐसे स्टैंडर्ड चीज़ों पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर इस स्टैंडर्ड को लिया तो इसके हिसाब से तो एक शिप विच इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ आयरन शुड सिंक बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द शिप इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, बट दैट डजंट हैपन, ये नहीं होता है, क्योंकि शिप का शेप एंड साइज हमने कुछ ऐसे किया हुआ है कि उसमें एक हॉलो सा अंदर का डाला हुआ है। आप जब कागज़ की नाव बनाते हैं तो भी ऐसा ही बनाते हैं ना, कि उसमें एक हॉलो सा शेप रखते हैं ताकि वो वैसा डूबे ना, ठीक है। वैसे भी कागज़ अफ्लोट रहेगा लेकिन ताकि वो डूबे ना,
ठीक है. सो दिस इज बेसिकली हाउ इट इज. ठीक है. रो इज लेसर देन, और रो इज लेसर ग्रेटर देन द डेंसिटी. ठीक है. डेंसिटी इज दिस, यहाँ पे भाई साहब डेंसिटी इक्वल, और यहाँ पे डेंसिटी इज लेसर देन दिस. ठीक है. ओके ओके ओके. Fractional submerged volume of floating body. When the weight of the body is lesser than the weight of the liquid displaced, the body floats partially submerged. ठीक है. अगर भाई साहब weight of the body, ठीक है, अगर यहाँ पे weight of the body is lesser than the weight of the liquid displaced, ठीक है, तो अगर आप इसका मतलब हम क्या बोलने की कोशिश करें, weight of the body is lesser than the upthrust. ठीक है. weight of the body is lesser than the weight of the liquid displaced. weight of the liquid displaced is equal to what? The upthrust experienced by the body. तो अगर भाई साहब weight of the body is lesser than the weight of the liquid displaced, ठीक है, then the body floats partially submerged. ठीक है. If V is the total volume of the body and V dash is the submerged volume, then at equilibrium weight of the body क्या हो जाएगा भाई साहब, weight of the liquid displaced. तो weight of the body हो गया this. तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब, अगर W U के बराबर हो जाए तो W मतलब हो जाएगा volume of the body, sorry, volume of the body, density of the body into G, V dash into rho into G. ये G और G भाई साहब आपका कैंसिल हो गया. अपन यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब V dash by V is equal to rho by G. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट, तो आपको ना देखो कभी भी सवाल अगर लगाना होगा ना, तो आप सिर्फ सबमर्ज पोर्शन को ही कंसिडर करेंगे, मतलब इतने पोर्शन को ही कंसिडर करेंगे. इतने पोर्शन के वजह से ही, चाहे कुछ भी मास रहने दो बॉडी का और कुछ भी शेप एंड साइज रहने दो, जितना वॉल्यूम उसका वाटर के नीचे सबमर्ज्ड है उसी के वजह से उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा. ठीक है. द अपथ्रस्ट दैट इज एप्लीकेबल ऑन अ सॉलिड इज ओनली ड्यू टू द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द सॉलिड इनसाइड वाटर. ठीक है. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ये आपको दिख रहा है भाई साहब. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इजी डेरिवेशन. सम तो आपके ये सब कॉन्सेप्ट है. देखो, अ शिप इज मेड अप ऑफ स्टील इज 8 टाइम्स डेंसर देन वाटर बट इट्स इंटीरियर इज मेड हॉलो. तो इसके शिप के इंटीरियर को हम हॉलो रखते हैं. ठीक है. इट्स अ कॉन्केव शेप. इट कैन डिस्प्लेस मच मोर वाटर देन इट्स ओन वेट. So the ship floats and can carry a lot of cargo. ठीक है. Ice floats on water because the density of ice is lesser than that of water. Human body is slightly more denser than water. An inflated rubber tube has low weight and large volume and increases the upthrust. It helps a person to stay afloat. ठीक है. देखो, human body is slightly more denser and hence it will sink. However, if you know how to swim, you will be able to stay afloat. ठीक है. ज़्यादा करके हम डूबते इसलिए नहीं हैं कि हमको स्विमिंग करना नहीं आता, ज़्यादा करके हम डूबते इसलिए हैं कि हम पैनिक में आ जाते हैं. ठीक है. अगर हम अपने बॉडी को आराम से छोड़ देना तो वो फ्लोट करेगा. ठीक है. जितना हम ऊहा करेंगे उतना डूबेंगे. ठीक है. दैट इज़ व्हाट विल हैपन. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कंटिन्यूसली हम अपने बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इधर उधर कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? आप जब हाथ पे ऐसे नचा रहे हैं, सो व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? यस, ये पैनिक मोड में होगा, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वैसा कंटिन्यूसली हिल रहा है और इसके वजह से आप पे जो अपथ्रस्ट लगता है वो भी वैसा वैसे ऐसे हो रहा है. ठीक है. अगर आप शांत तरीके से आप अपने आप को ऐसे फ्लोट करना, जिन्होंने स्विमिंग किया इस चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. ठीक है. अगर आप शांत तरीके से अपने बॉडी को छोड़ेंगे ना, वो अपने आप फ्लोट करेगा. सिर्फ थोड़ा सा पैर को ऐसे ये करके, या जैसे मछली लोग करते हैं वैसा कीजिए, आप आराम से फ्लोट कर सकते हैं कम से कम. इफ नॉट स्विम हेविली, एटलीस्ट यू कैन स्टे अफ्लोट, एटलीस्ट यू कैन स्टे अबव द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है. तो ये आराम से, अगर आप पैनिक सिचुएशन में जाके बॉडी को ऐसे छोड़ देंगे ना, वो अपने आप फ्लोट करेगा. ठीक है. क्लियर है? ओके. सो ह्यूमन बॉडी इज स्लाइटली मोर डेंसर देन वाटर. एन इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब हैज लो वेट एंड लार्ज वॉल्यूम and increases the upthrust. It helps the person to float. A person can swim in sea water more easily than in river water. Why? Because the density of sea water is more. Okay? So it exerts a greater upthrust. The average density of a fish is slightly greater than water by means of an anatomical attachment called swim bladder, whose size is it can adjust. The fish is able to swim with ease. तो आपके हर एक फिश में एक स्विम ब्लैडर होता है और इस स्विम ब्लैडर को एडजस्ट करते हुए अपने हाइट को वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं.
दे कैन बेसिकली एडजस्ट देयर हाइट, ठीक है, ओके। ऑल राइट हो, तो ये सब तो भाई साहब आपका हो गया, रिलेटिव डेंसिटी अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी विल डू सम सवाल हियर। चलिए भाई साहब कॉपी किताब निकालिए एकदम फटक से। टिप ऑफ एन आइसबर्ग, टिप ऑफ एन आइसबर्ग किसको बोलते हैं? आपने बहुत बार ये सुना रहेगा, ओ माय गॉड योर स्टडीज आर लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा दुर्घटना घटने वाला है। टिप ऑफ एन आइसबर्ग हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपका ये समझ लो समुंदर है और समुंदर में एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, आपको क्या लग रहा है कि आप एक बड़े से शिप में आ रहे हैं, अरे छोटा सा टुकड़ा ही तो है इधर कम, लेकिन एक्चुअली वो छोटा सा टुकड़ा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है नीचे बर्फ का जो आपको नहीं दिख रहा है। और जब भी ये शिप आपका टकराएगा तो टाइटैनिक की कहानी बनेगी, है ना। तो दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है, ओके। सो द डेंसिटी ऑफ आइस, आपका डेंसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है यहाँ पे कितनी है? डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो द वाटर, ठीक है, कितना फ्रैक्शन ऑफ आइस इज बिलो द वाटर? द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1000, तो आपका डेंसिटी ऑफ आइस हो गया ये, एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हाउ मच? 1024 kg per meter cubic. What fraction of the iceberg do we see assuming that it has the same density as ordinary ice? ठीक है, तो अभी आपने देखा भाई साहब v डैश बाई v क्या था भाई साहब आपका? बोलिए ना, बोलिए, अभी अपने ने प्रूव किया ना, देखो v डैश द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, volume of the submerged part upon total volume of the body, density of the body upon density of the liquid, ठीक है। तो density of the body upon density of the liquid, तो volume of the submerged part, ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं भाई साहब volume of submerged part, volume of submerged part upon total volume is equal to density of solid upon density of liquid, ना, density of liquid, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट भाई साहब यहाँ पे तो हमारा v डैश है लेट्स से, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? द डेंसिटी ऑफ द आइस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस, चलो हमको नहीं मालूम ना, ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, दिस इज टोटल वॉल्यूम। तो दिस इज बेसिकली हाउ मच डेंसिटी ऑफ आइस, दैट इज 917 upon density of sea water, that is 1024. ये क्या हो गया भाई साहब, कितना आ रहा है ये? 0. ये लेकिन 1000, यहाँ पे 1000 क्यों ले लिया है भाई साहब? गलत लिया हुआ है, यहाँ पे 1000 लिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर ले लिया है 1000, डेंसिटी ऑफ सी वाटर नहीं लिया है इसको। 0. यहाँ पे गलत लिया हुआ है, एक्चुअली इन्होंने डेंसिटी ऑफ वाटर ले लिया है, एक्चुअली यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सी वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो v डैश बाई v कितना हो गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? v डैश बाई v बेसिकली क्या है? ये फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट है ना, फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट है, इसको आपको समझना है भाई साहब। दिस इज बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग डू वी सी अज्यूमिंग दैट इट हैज, तो कितना दिख रहा है? अनसबमर्ज्ड पार्ट कितना होगा, ठीक है, दैट विल बी जस्ट 1 माइनस v डैश बाई v, ये हो जाएगा आपका अनसबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है, अनसबमर्ज्ड पार्ट फ्रैक्शन का भाई साहब। तो कितना हो गया? 1 माइनस 0.89, तो 1 माइनस 0.89 दैट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 9 + 1 10, इतना भाई साहब आपका परसेंटेज, इतना परसेंटेज तो नहीं बोलेंगे, 0.11, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं भाई साहब दिस इज द अमाउंट, द फ्रैक्शन ऑफ आइस दैट वी कैन सी, फ्रैक्शन ऑफ आइस दैट वी कैन सी विल बी 0.11, ठीक है, परसेंटेज वाइज बोलोगे तो 11%, ठीक है। क्लियर पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला सवाल करके दिखाओ। द डेंसिटी ऑफ आइस is 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक
and that of water is 1.03 gram per centimeter cubic. An iceberg floats with a portion of 224 मीटर क्यूबिक आउटसाइड द सरफेस ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है, तो अपन का भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v डैश, तो आपका यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट w इज इक्वल टू u वाली सिचुएशन है कि नहीं. तो v वॉल्यूम ऑफ आइस, लेट्स से दिस इज डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, एंड g that will be equal to the upthrust, that is volume of liquid displaced, density of liquid displaced upon g, है ना. तो ये कैंसिल. ठीक है, तो आपका भाई साहब तो कितना, हाँ सॉरी, अपन ने क्या निकाला था भाई साहब, v डैश बाई v इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो v डैश कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे, an iceberg floats with a portion of this much 224 मीटर क्यूबिक. v डैश मतलब क्या है, सबमर्ज पोर्शन है. तो टोटल वॉल्यूम अगर v है और बाहर का पोर्शन 224 मीटर क्यूबिक है, तो सबमर्ज पोर्शन कितना हो जाएगा, ये सबमर्ज पोर्शन है भाई साहब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन. और ये क्या है भाई साहब आपका टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन, दिस इज टोटल वॉल्यूम. ये क्या है भाई साहब आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड. और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, ओके. तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो. अरे अगर टोटल वॉल्यूम v है जिसका 224 मीटर क्यूबिक बाहर है, तो सबमर्ज पोर्शन कितना होगा. अरे भाई साहब, अरे तो इतनी देर क्यों लग गई. ठीक है, ये है आपका भाई साहब 224, टोटल वॉल्यूम कितना है, v है, तो सबमर्ज पोर्शन दैट इज v डैश, ये कितना हो जाएगा, v माइनस 224. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है, सो v डैश विल बी हाउ मच, v माइनस 224 अपॉन क्या भाई साहब v. दिस विल बी इक्वल टू, अभी लगा लो भाई साहब यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस इज हाउ मच 0.918 अपॉन 1.03. ठीक है, क्लियरम. इसको भाई साहब अगर करते हैं आप, v बाई v कितना हो गया 1 माइनस 224 बाई v इज इक्वल टू 0.918 1.03. ठीक है, इसको भाई साहब इधर ले लो, तो 1 माइनस 0.918 अपॉन 1.03 इज इक्वल टू 224 बाई वी. क्या ये समझ में आ रहा है, इसको इधर लिया तो ये प्लस हो गया, इसको इधर लिया तो ये माइनस हो गया. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.03 माइनस 0.918. ठीक है, 1.03 इज इक्वल टू 224 बाई वी. समझम कितना आ रहा है, ये देखो 1.03 से माइनस 0.918 करो, 0.2138. 38 क्यों आएगा, तीन ही नंबर है ना यहाँ पे, नहीं वो डिवाइड करके सब कुछ नहीं सिर्फ इतना ही. देखते ना, कुछ कट्टम कुट्टम हो सकता है अपन. इसका कितना आ रहा है 1.03 माइनस 0.918. ओके, तो भाई साहब कहाँ थे हम, कहाँ ये वाला कि ये वाला ये है ना. हाँ, ये वाला सब्ट्रैक्शन बताओ ना कितना. हाँ ठीक है भाई साहब 0.112. हाँ देखो, मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ये 224 कटेगा उससे. ठीक है, तुम जो बोल रही थी ना वो कटेगा नहीं उसमें, तो ये 0.112 ये हो गया आपका 1.03 इज इक्वल टू 224 बाई वी. ठीक है, तो वी को अपन ने इधर लिया तो ये हो गया कितना बोलो 224 इंटू 1.03 अपॉन 0.112. ये स्ट्रेट कट जाएगा भाई साहब. तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा चला गया, नीचे भी तुमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, ये भाई साहब सीधा जा रहा है 2 से, तो ये हो गया कितना 3 2 6, 0 2 0, 2 1 2. ठीक है, देखो कभी भी ना फिजिक्स के सवालों में ना काटम पुटी के ओकेजन देखा करो, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही कि नहीं मिल रही है तो झक मार के वही करना पड़ेगा भाई साहब, कुछ कर नहीं सकते. लेकिन अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना सवाल को आसान बनाने की, तो प्लीज़ बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट. आपका सवाल
का ट्रेंड चेंज हुआ है। स्पेशली स्टेट बोर्ड वालों में ऐसे चिंदीगिरी कैलकुलेशंस होते थे कि इंसान दम तोड़ देगा, कोई भी इंसान दम तोड़ देगा भाई साहब। तो अभी धीरे धीरे ये मॉडिफाई हुआ है, अभी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के सवाल मिलते हैं। अगर IIT या नीट के सवाल आप देखोगे तो उसमें से चिंदीगिरी कैलकुलेशंस नहीं है, ठीक है, उसमें सवाल डिफिकल्ट हैं लेकिन कैलकुलेशंस नहीं है इस तरीके के। वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी अ कैलकुलेटर आउट देयर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यू बेसिकली अगर आपका अप्रोच सही है तो ये तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके 2.06 × 10⁻³ ये क्या हो गया भाई साहब, आपका टोटल वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे देखो 2.06 × 10⁻³ इसी को अपन अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 2060 है ना। दिस इज 2060 आपका मीटर क्यूबिक, ये मीटर क्यूबिक में आए। दिस विल बी फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग। क्लियर हम पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, सही जा रहे हैं मतलब पूरा सही जा रहे हैं भाई साहब। ओके चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। A mass of a 6 kg is floating in a liquid with 2/3 of its volume inside the liquid, ठीक है। तो कोई मास है भाई साहब, ऊबड़ खाबड़ कोई सा भी मास रहेगा भाई साहब, ऐसा कुछ भी मास है, ठीक है। ये किसी लिक्विड में है, ये किसी लिक्विड में है भाई साहब, ठीक है, और इसका 2/3 वॉल्यूम अंदर है। तो जैसे टोटल वॉल्यूम अगर V है तो 2/3 V इज इनसाइड, तो कितना बाहर रहेगा, 1/3 है ना, बाहर आपका 1/3 V है। हमको इसी से मतलब है बेसिकली, ठीक है। दिस इज द वन विच वी आर कंसर्न्ड विद, ठीक है। A body of mass 6 kg is floating in a liquid with 2/3 of its volume inside the liquid. Find the buoyant force acting on the body. तो what is the buoyant force acting on the body? Buoyant force यहाँ पे जो weight of the body, ये कौन सी सिचुएशन में होगा, कौन सी सिचुएशन में होगा, जब weight of the body किसके बराबर हो, उस पे लगते हुए अपट्रस के बराबर हो, समझम, ठीक है। weight of the body कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, weight of the body will be 6 × G है ना, 6 × 10 समझम, 6 kg है ना, 6 × G ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी प्यूमा, ठीक है। अपट्रस कितना लग रहा है भाई साहब आपका, अपट्रस सिर्फ इस पोर्शन के वजह से लगेगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड है, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 2/3 V, ठीक है, इंटू भाई साहब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा ठीक है भाई साहब, ये ढूंढने बोला है हमको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ये हो गया भाई साहब जी मतलब 10, तो कैंसलम यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है भाई साहब, बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो द बियॉन्ड फोर्स, अच्छा यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब बियॉन्ड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, बियॉन्ड फोर्स U इज इक्वल टू W, तो W की वैल्यू कितनी है 6 × 10 है ना, तो दैट इज 60 न्यूटन का बियॉन्ड फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके भाई साहब, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको देखें, अगर समझ लो ये हमको नहीं दिया रहता तो कितना होता था बोलो, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी है ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख लेते हैं हम भाई साहब यहाँ पे, या यहाँ पे सीधा लिखते हैं सिग्मा, ठीक है, इनटू G। अगर हमको ये नहीं दिया रहता तो अपन ये लिखते थे ना, वेट ऑफ द बॉडी मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू G। अब प्लस कितना ऐड कर रहा है, 2/3 V अंदर गया है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, ये होता था है ना, ये कैंसिल भाई साहब, ये और ये कैंसिल, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या पूछा है भाई साहब, रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2/3, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट विल बी 2/3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आज के लिए भाई साहब इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल